अच्छा मेरा बेटा सी। मेरे बेटे ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਸਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਨ ਫਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। यहाँ पे तो कत्ल हो गए हैं, यहाँ पे इतने बंदे जख्मी हो गए हैं। ਇਹਨੂੰ 11 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ये पुलिस ने अच्छे खासे पैसे खा लिए। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं। जब मेरा भाई चला गया ना तो मेरी जान बचे ना बचे, मुझे किसी का खौफ नहीं है। ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। हमने स्ट्राइक किए, इन्होंने हमारी औरतों के दुपट्टों पे हाथ डाले हैं, चादरों को खींचा इन्होंने। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, थाना फैक्ट्री एरिया कैंची अमर सदू की हदूद में मौजूद हूं। 23 साला नौजवान अली गिलानी की दर्दनाक मौत किस तरह हुई, क्या मामलात हुए, कातिल कौन थे और क्या अब तक तमाम कातिल गिरफ़्तार हो चुके हैं या नहीं। अली की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, बहन मौजूद हैं, मज़ीद इनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये केस अब कहाँ तक पहुँचा है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझे पता है कि आपकी क्या कैफियत है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या कर रही जब आपको मालूम हुआ कि अली को गोली लगी हुई है। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਟਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਸਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਨ ਫਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, और 2 बेटियां 1 बेटा सी। 23 साल उम्र थी अली गिलानी की और सबसे अहम बात कि जिस दिन उनकी पैदाइश हुई थी उसी दिन उनकी डेथ हो गई। और घर वाले जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, इंतज़ामात कर रहे थे। दोस्त अहबाब जो हैं वो उसकी बर्थडे के इंतज़ामात कर रहे थे कि किस तरह बर्थडे आज सेलिब्रेट करनी है। तो मुझे बताइएगा कि बहुत सारे मामलात में होता है ज़ाती दुश्मनियाँ होती हैं। आपका तो सादात घराना है, आपके घराने ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे बताइए कुछ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी या सिर्फ वही जो मोहल्ले की लड़ाई होती है, 2 पार्टियों की लड़ाई हो रही थी, कोई शख्स तीसरा जाके बीच में देख रहा होता है या सुलह करवा रहा होता है और वो उसमें उसकी लपेट में आ जाता है। नहीं सर, मेरा बेटा पढ़न वाला बच्चा सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सी, ना लड़ाई झगड़ा पसंद करता सी, ना उठना बैठना ऐसे लोगों नाल। मेरा बेटा बहुत अच्छा, बहुत नाइस। पूरे अमर सदू ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, लौता बेटा था। ਲੌਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। कफील भी था इस वक्त घर का, यहाँ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ हो गया है तो बहुत ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਔਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। मेरे बेटे पूरा रमज़ान रोज़ा रखा, 2 रोज़े लेट हो गए। मेरे बेटे ने 8 पैरा रोज़ा रखा, 5 वक्त का नमाजी सी, बहुत नेक और शरीफ सी। इवें तक मैं माँ वा ना, अहले महल्ला तो पूछ सकते हैं कि बच्चा कैसा सी। नहायत शरीफ सैयद घराना सी, सैयद गुलाम अली अकबर उनका नाम सी। बा इज़्ज़तदार बच्चा सी,
लेकिन बहुत बेदर्दी नाल मारे। मुझे बताइएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से क्या मामलात हैं अभी? एफआईआर कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड है या क्या मामला? सिर्फ तसल्लियाँ ने, तसल्लियाँ दी सिर्फ तसल्लियाँ, सब तसल्लियाँ। आप मुतमईन नहीं है इस वक्त? नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने कातिल अब तक गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, मुझे ये बताएं। मुतमिन करके जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे दी खून ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਦਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਦਾ 17 ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਇਹਨੂੰ 11 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਜੇ। 8 ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛਡਾਣ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, 1-2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 6 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। 3 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। अल्लाह आपको सब्र दे। अभी मेरे साथ अली की बहन भी मौजूद है। आप बड़ी बहन है अली की? हाँ जी। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा, मुझे कुछ मामलात का यहाँ पे पता चला है कि आप जब अली की कब्र पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जो मुखालिफ पार्टी है जिन्होंने इस बच्चे को कत्ल किया, इस नौजवान लड़के को कत्ल किया है, उनके जो हमायत याफ्ता लोग हैं, उनके जो कह लें कि आप इस वक्त उनकी पुश्त पनाही में हैं, वो लोग वहाँ कब्रस्तान में नशई वो आपको डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे? बेसिकली इनका कारोबार ही यहाँ पे ये था कि नशा बेचना, ठीक है। ये नशे का काम करते थे यहाँ पे, यानी कि असला वगैरह भी इनके पास काफ़ी है। तो हम जब कब्रिस्तान जाते थे ना, तकरीबन 1 हफ़्ता, तब तो कोई नशई वगैरह कोई भी नहीं होता था। लेकिन अब जब हम जाते हैं तो अली की कब्र के बिल्कुल सारे एक दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त की छाँव में सारे नशई इकट्ठे होकर बैठते हैं। जब हमने जाना होता है, उनको पता है कि इनके आने का ये टाइम है, हम मगरिब से पहले जाते हैं और फजर के बाद जाते हैं, उनको पता है कि इनका ये टाइम है। अब वो सारे नशई वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। दूसरा, जब अली का 10वां हुआ है ना, उसके बाद मेरी अम्मा जान घर पे थी, यानी कि हम घर पे थे, तो 2 लेडीज़ आई हैं हमारे घर से। पहले भी काफ़ी सारे घर आते हैं, आपने देखा ही होगा। वो 2 लेडीज़ सिर्फ हमारे घर में आके मेरी अम्मा से पूछ रही हैं कि ये जाहिद का घर है, जिसको गिरफ़्तार किया गया, उसका घर है। उसने बोला कि मेरा बिस्तर और खाना वगैरह भेज दें, यानी कि उसका नाम सुना के हमें डराया जा रहा है कि भी मैं हूँ, थ्रेट करने की कि नहीं, हाँ, नहीं। कि मैं हूँ और मैं कभी भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और वो हमें सिर्फ ये धमकियाँ वगैरह उनकी तरफ से आ रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि पिछली ईद आपकी इकट्ठी गुजरी होगी, भाई आपका छोटा भाई था, इकट्ठी गुजरी होगी। इस ईद पर अली नहीं होगा आपके दरमियान। आप फैमिली मेंबर होने के नाते अली के कत्ल का कहाँ तक आप मामला लेके ऊपर जा चुकी हैं और अभी तक क्या कानूनी मामला चल रहे हैं? माँ जी से भी डिस्कशन किया है, लेकिन आप बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से बता सकती हैं। देखें, जो हमें इन्होंने बुलाया है, जाहिद महमूद ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, 10वें के बाद हम लोग गए हैं। तो हमें इसने बताया, तकरीबन घंटा हम बैठे रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद जनाब आए हैं और हमें बता रहे हैं आके भी जिस बंदे का फ़ायर आपके भाई को लगा है, उसकी तो अपनी टांग में फ़ायर लगा हुआ है, वो तो खुद बीमार है, वो तो खुद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है, उसकी माँ घरों में काम करती है, उसकी बीवी मजदूरियाँ करती है, यानी कि वो हमें उनकी दलीलें दे रहा है, उनका हमें बता रहा है ताकि हम लोग उनके जो खून का हमें है हम माफ़ कर दें। तो उसके बाद हमने ये प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दी कि भाई हमें उसकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, हमें अपने आयो से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने आगे प्रोटेस्ट वगैरह की। अच्छा, हमने प्रोटेस्ट की है मंडे को, तब हमसे हमारे जो एसएचओ साहब हैं वजीउल्लाह साहब, इन्होंने बड़े प्यार से इत्मीनान से हमें एसपी के ऑफिस लेके गए हैं कि जी हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपके मुतालबात को हम सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। वहाँ पे हमें लेके गए हैं और भी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि हमारे जो मुहाफिज है ना, आप लोग अकेली औरतें, आपको खौफ है या डर लगता है, हमारी तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। आज सैटरडे है, ठीक है, मंडे को हमने स्ट्राइक की थी अपनी, ठीक है, अभी तक हमें कोई मुहाफिज नहीं मिला। हम आपके केस को लेके ऊपर तक जाएंगे, हमारी 780 की दफात ही नहीं लगी, हालांकि घर में घुस के उन्होंने मारा है, ठीक है, घर में घुस के जब मारा है तो 70-80 की लगती थी, ठीक है ना, वो उन्होंने लगाई नहीं, 780 की इन्होंने दफात ही नहीं लगाई। जिस बंदे के ऊपर कत्ल का है, ठीक है, इल्ज़ाम, दफात लगनी चाहिए 302, उसको इन्होंने 324 में लगा दिया हुआ है।
आप मतलब अभी जो दफ़ात लगी हैं आप उनसे मुतमईन नहीं, अभी मुकम्मल तौर पे आप समझती बिल्कुल हैं? मुतमिन नहीं है। देखिए, अगर घर में कोई घुस के आपको मारने की कोशिश ही करता है ना, तो उस पे भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं। यहाँ पे तो कत्ल हो गए हैं, यहाँ पे इतने बंदे ज़ख्मी हो गए हैं, इन्होंने 70-80 क्यों नहीं लगाई? 780 की दफ़ात लगानी बनती थी इनकी, ठीक है? फिर जिन बंदों पे इनकी 300, वो क्या कहते हैं, 302 की लगती, 302 की। हाँ, 302 की लगती थी ना, इनको इन्होंने उसके ऊपर 324 की लगा दी हैं। यानी कि पुलिस ने अच्छे खासे पैसे खा लिए। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं। जब मेरा भाई चला गया ना, तो मेरी जान बचे ना बचे, मुझे किसी का खौफ नहीं है। मैं बेखौफ होके कहती हूँ कि यहाँ पे पैसे खा, इन्होंने स्टार्ट में ही पैसे खा लिए। तो इतनी से कभी फलां बंदा इस तरह का मजदूर है, वो गरीब है, वो नशई है, ठीक है? और ऊपर से जी उसने देखे एक बंदा जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, उस बंदे ने आके सिलेंडर क्यों किया है? क्योंकि उसने सबसे पहले इनको आके इत्मीनान में लिया है, ठीक है? जाहिद के ऊपर मर्डर का चार्ज है, उसने आके सिलेंडर कर दिया। वो इतना बेखौफ तो नहीं हो सकता। जब पुलिस को उसने अपने आके लिया है, अपनी तसल्लियाँ वगैरह पुलिस ने उसको दी कि तुम आ जाओ, तुम गिरफ्तारी दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ही इस बंदे ने गिरफ्तारी दी होगी। कोई भी बंदा ऐसे नहीं करता कि उसके ऊपर कत्ल का हो केस और वो अपनी गिरफ्तारी खुद दे दे भागने की बजाय। गुलाम अली अकबर नाम था जी। ये आप देख सकते हैं, ये बहन के हाथ में तस्वीर है। कितना खूबसूरत नौजवान लड़का है और कितनी दर्दनाक तरीके से मार दी गई। माँ जी, इस वक्त हम इस कमरे में जो मौजूद हैं, ये भी अली का कमरा था, उसकी यादें आ रही हैं, यादें में बसता होंगी बहुत ਬੈੱਡ सारी। ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਦਦ ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ नहीं मिल रही। बहुत सारे अभी अरमान भी होंगे। शादीशुदा था या अभी होनी थी शादी? होनी थी 6 माह बाद शादी करनी सी बेटे दी, बेटे दा। इंगेजमेंट हुई हाँ हुई थी। जी जी जी। अल्लाह जी आपको सब्र भी दे। और नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक मौत है। आप यकीन कीजिएगा कि वो जो वालदा बयान कर रही है उनकी क्या कैफियत है, ये वही इस वक्त जानती हैं। हमारे साथ अली की जी। हमने इनसे बोला है कि हमने अपनी तफ्तीश चेंज करनी है, हमें सीआई के पास अपना केस लेके जाना है। फिर ये हमें तसल्ली नहीं दे के भेज देते हैं घर, फिर हमें एसपी के ऑफिस ले जाते हैं। अगर हम स्ट्राइक करें तो हमें स्ट्राइक नहीं कहा, हमने स्ट्राइक किए, इन्होंने हमारी औरतों के दुपट्टों पे हाथ डाले हैं, चादरों को खींचा है इन्होंने, उनको गालम गलोच वहाँ के एसएचओ ने की है। अभी अली की बहन, बड़ी बहन और वालदा मेरे साथ मौजूद थी। और स्पेशली इन्होंने एक तो मैं ये बता दूं कि जी ये सादात घराने से हैं, गिलानी फैमिली है। और वही फैमिली है जिन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाई, अपनी मतलब इज़्ज़त बचाने के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। यहाँ पे ये कानून नाफिज़ करने वाले इदारों से अपील कर रही हैं। स्पेशली आईजी पंजाब साहब, आपसे अपील की जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे अपील की जा रही है। रियासत कहते हैं कि माँ की तरह होती है, जो कि अवाम होती है वो बच्चों की तरह होती है। तो अपने बच्चों के साथ माँ किस तरह बर्ताव करती है, ये मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कैमरा भी पहुँच रहा है, शूटिंग भी हो रही है, सारे मामलात हो रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, खुदारा इन लोगों के पास पहुँचे, इनको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इनका यही कहना है कि हम स्ट्राइक भी करेंगे और अपने भाई के कातलों को जब तक मुकम्मल उनको कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाते, उनको सज़ाएं नहीं मिल जाती, हम सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये तमाम तरह अपडेट्स थी। अली की फ़ैमिली का इंटरव्यू किया, इनका मौक़िफ़ आप सबके सामने रखा। मज़ीद इनके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।